مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں سب کو سلام۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، خدا باپ کی تعریف کرتے ہیں کیونکہ وہی تعریف کے لائق ہے، وہی حمد کے لائق ہے، کیونکہ خداوند نے ہم سب سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا میرے لیے اور آپ کے لیے بخش دیا تاکہ ہم سب اس پر ایمان لائیں، اس پر بھروسہ رکھیں۔ اور جب ہم اس پر ایمان لائیں گے، بھروسہ رکھیں گے تو ہم کیا ہمیشہ کی زندگی پائیں گے، ہم ہلاک نہیں ہوں گے بلکہ ہم خدا کے بیٹے بیٹیاں کہلائیں گے۔ ہمیں صرف خدا کے کلام پر توجہ کرنی ہے، ایمان رکھنا ہے کہ یسوع ہی ہمارا خداوند خدا ہے۔ آج کے زندہ کلام کے لیے ہم شکر کرتے ہیں جو یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب اور 3 آیات میں یوں محکوم ہے۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا۔ پاک کلام پر جان پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، خدا کی تعریف ہو۔ خدا کی بادشاہی کیا ہے؟ خدا کی بادشاہی صرف ایک جگہ نہیں بلکہ وہ حالات ہیں جو اس وقت ہونے والے جو ہوتے ہیں جہاں خدا حکمرانی کرتا ہے، اور خدا کی مرضی پہ ہمیں چلنا ہے، اس کے کلام پر عمل کرنا ہے اور ہم ایک دوسرے کی خدمت کرتے ہیں، اس محبت میں چلتے ہیں جو میرے اور باپ نے اب بھی جیسا ہم نے کیا کہ خدا نے ہمیں محبت کرنا سکھایا، اس کی محبت پر چلتے ہیں، اس کے کلام کو لے لیتے ہیں، یسوع کی خوشخبری سناتے ہیں جہاں خدا کا کلام کہتا ہے ایمال 10 باب 36 میں ہے کہ جو کلام اس نے بنی اسرائیل کے پاس بھیجا کہ یسوع مسیح کی بنیادی کرو، اس خوشخبری کو، اس صلح کی خوشخبری کو دنیا کی انتہا تک پہنچا دو۔ اس اعمال 13:26 میں لکھا ہے، اے بھائیو ابراہیم کے فرزندو، اے خدا ترسو، اس نجات کا کلام جو ہمارے پاس بھیجا گیا ہے اسے لے لے، اسے ہم نے قبول کرنا ہے۔ اسی طرح زبور 147 18-19 میں یوں محکوم ہے کہ وہ اپنا کلام نازل کر کے ان کو پگھلا دیتا ہے، وہ چلتا ہے اور پانی بہنے لگتا ہے، وہ اپنا کلام یعقوب پر ظاہر کرتا ہے، وہ اپنا کلام ہم سب پر۔ آج خدا کا زندہ کلام میرے اور آپ کے پاس ہے، ہمیں صرف کلام کو لینا ہے اور خدا کی مرضی کو پورا کرنا ہے۔ خدا کی بادشاہی کے لیے انٹری کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ توبہ کرنی ہے۔ توبہ سے مراد اپنے گناہوں کو ترک کرنا ہے اور خدا کی طرف پھرنا ہے۔ توبہ کا مطلب ہے لفظی طور پر برے کاموں سے باز آنا ہے اور اپنے اس عہد کو جو خدا سے ہم نے کرنا ہے اس پر قائم رہنا ہے۔ گناہوں کی معافی، گناہوں اس وقت واضح ہوتے ہیں یا واقع ہوتے ہیں جب انسان خدا سے منہ پھیر لیتا ہے یا خدا سے اس کی دوری ہو جاتی ہے یا خدا سے اس کا رابطہ نہیں رہتا۔ ہمیں خدا کی حضوری میں رہنا ہے، اس کے رابطے میں رہنا ہے۔ اگر ہم دنیاوی طور پر بھی دیکھ لیں کہ اگر ہم تھوڑے دن کسی سے فون پہ بات نہیں کرتے، اپنے بہن بھائیوں سے، عزیزوں، تو آہستہ آہستہ یہ مطلب دوریاں کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ وہ کتنے دن ہو اور میرے نال تو مہینہ ہی ہو گئے نے گل نہیں ہوئی، مطلب پھر ہم بڑی نادانگی کے ساتھ یہ لفظ کہہ دیتے ہیں، بہت دن ہو گئے میری تو بات ہی نہیں، پتہ نہیں کتنے مہینے ہو گئے۔ تو اسی طرح ہمیں خدا کے جو ابلیس ہے وہ وہی ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ وہ ہماری سوچوں جو ہمارے اندر وہ سوچے ڈال دیتا ہے، جو نیگیٹیوٹی ڈال دیتا ہے، وہ ہماری سوچوں کے ذریعے سے ہماری زندگی میں آتا ہے، پھر وہ ہمارے رشتوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ وہی ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے جو ہماری سوچوں کو خراب کرتا ہے، تو وہ ہماری سوچوں میں آ جاتا ہے۔ آج دیکھیں آج دنیا میں کیا ہو رہا ہے، خون اتنا میں آپ کو بتاؤں کہ اتنے لوگ سخت دل ہو گئے ہیں کہ کلام ان پر اثر نہیں کر رہا۔ باپ مر گیا، ہمارے ایک اپنے عزیز ہیں، ان کا باپ مر گیا، اس کا بیٹا اپنے باپ کے فیونر پر نہیں آیا۔ سوچو، نہیں آیا۔ کیوں نہیں آیا؟ کیا وہ اپنے باپ کا آخری بار بھی دیدار نہیں کرنے آیا؟ کیوں نہیں کرنے آیا؟ کہ شیطان نے ان کی آنکھوں کو بند کیا، ان کی سوچوں کو ختم کر دیا۔ یہ خدا کی طرف سے نہیں ہے، یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ سوچیں کہاں سے آ رہی ہیں جو ہمارے رشتوں کو خراب کر رہی ہے، ہماری آنے والی زندگیوں کو خراب کر رہی ہے، ہماری نسلوں کو خراب کر رہی ہے۔ یہ باپ کے جنازے پہ نہیں آیا، ایک اسی طرح بیٹا اپنی ماں کے جنازے پہ نہیں آیا۔ وہ اس کی ماں مرنے
तक उसका इंतज़ार करती रही, लेकिन वो ऐसा संग दिल बेटा था, वो नहीं आया। लेकिन वो भी महीने के बाद खुद भी मर गया। लेकिन वो कहने की बात ये है कि इतना दिल इंसान के जो इख्तियार में नहीं है वो कर देता है। इतना सख्त कर दिया कि वो माँ तड़प रही है, मैसेज पे मैसेज दे रही है कि आ जाओ, सबके भी बहुत बीमार है, लेकिन वो नहीं आया। ये नहीं कि वो दूर था, ये नहीं कि वो पहुंच नहीं सकता था, यहीं थे, एक ही जगह पर रहते हुए भी वो नहीं आ सके। तो शैतान ने हम सब की सोचों को उसने कब्ज़ा कर लिया। इसी तरह वो सोचों के ज़रिए वो दुश्मन सोचों को चुरा लेता। वो हमारी सोचें ही हमारी दुश्मन हो जाती है। हमें अपने आप को संभलना है, अपने आप को देखना है कि मैं कहाँ खड़ी हूँ। तो इसीलिए वो क्या रिश्तों को ख़त्म कर देता है। और हमें इस दूरी को ख़त्म करने के लिए माफ़ी के ज़रिए क्या माफ़ी इंसान के एहसास और गुनाह और शर्मिंदगी और पछतावे को ख़त्म कर देती है? हाँ, कर देती है। लेकिन अगर वो जो बच्चा अपने बाप को आखिरी मरले पे नहीं देखना आया, क्या वो दोबारा बाप को देख सकेगा? या वो अपना बेटा अपनी माँ को नहीं देखने आया, क्या वो अपनी माँ को देखेगा भी दोबारा? कभी नहीं देखेगा। क्या वो अपने आप को माफ़ कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? ये वही जानता है कि वो क्या कर पाएगा। लेकिन जब हम खुदा पे ईमान रखते हैं, क्योंकि खुदावन पर ईमान रखने से, खुदा के कलाम को लेने से ही हम समझेंगे कि ये गलत बात है या सही है। हमें सिर्फ अपने आप को इस लायक करना, अपने आप को इस तरह कर देना कि हमारी सोचों को भी कोई ना छेड़ सके। मज़बूत होना है, कलाम में मज़बूत होना है, क्योंकि तुमको ईमान के ज़रिए से फजल बख्शा गया कि नजात हासिल करें। और नजात कहाँ से आती है? नजात हमारे खुदावन की बख्शिश है। हमें नजात लेनी है। उसने हमें हर तरह की नजात देती है। और हमें खुदा की बादशाही में किस तरह दाखिल होना है? बादशाही क्या है? खुदा का हुक्म मानना, उसकी मर्ज़ी पे चलना और अबदी ज़िंदगी पाना जो खुदा की हज़ूरी में है। इसी तरह अगर हम देखते हैं कि इसके लिए हमें अपनी पुरानी ज़िंदगी और नई ज़िंदगी में क्या फ़र्क करना चाहिए। बस अपने उन अज़्ज़ा को मुर्दा करो जो ज़मीन पर है, यानी हरामकारी, नापाकी, शतूत परस्ती, बुरी ख्वाहिशें, लालच और जो बुत परस्ती के बराबर है। इन सब को अपनी ज़िंदगी से निकाल देना है, क्योंकि इन्हीं के वसीले से हमारी ज़िंदगियां में नाफरमानी आती है। हम खुदा के हुक्मों को नहीं मानते, खुदा की मर्ज़ी पे नहीं चलते। यही चीज़ें इंसान की ज़िंदगी को ख़राब कर देती हैं। वो उस अकेले की ज़िंदगी नहीं, बल्कि नस्ल दर नस्ल ये फिर चलता रहता है। तो हमें क्या करना है? हमें सिर्फ खुदा के हुक्मों को मानना है, उसकी फर्मा बरदारी करनी है, उस कलाम को मानना है जो खुदा का सच्चा ज़िंदा कलाम है। आज खुदावन का कलाम मेरे और आपके पास है, लेकिन अब हम तो क्या करेंगे? इन सारे गुस्सों को, कहर को, बदखोई को और मुंह से गाली बकना, झूठ बोलना, एक दूसरे के अपने आप को दिखावे के लिए सब कुछ करते हैं। क्योंकि हमारी जब तक ये पुरानी इंसानियत नहीं जाएगी, हम इसे उतार कर फेंक नहीं देते, हम नई इंसानियत को, नए कलाम को, खुदा का ज़िंदा कलाम नहीं ले लेते, हमें ये चीज़ें, जब तक ये सब चीज़ें हमारे अंदर है, इनमें से एक भी है ना, वो हमारे किरदार को ख़राब कर देती हैं, हमें खुदा की हजूरी में जाने से रोकेंगी। हमें अपने आप को, ये नहीं फ़लानी कलीसिया मतलब कुछ भी है, खुदा का ज़िंदा कलाम हमारे लिए, सब के लिए यकसा है। उसने सब के लिए जान दी। आज हम इन गंदगियों का गुलाम नहीं हैं, हम आज़ाद हैं, क्योंकि सिर्फ खुदावंद यीशु ने हमें आज़ाद किया। और हमने सिर्फ क्या करना है? यीशु मसीह पे भरोसा रखना है, इस ज़िंदा कलाम पर, क्योंकि खुदा कहता है तुमने मुझे बांटा है, मैंने तुम्हें किसी को नहीं बांटा। तो हमें सिर्फ खुदा के ज़िंदा कलाम पर तवज्जो करनी है, तब भी जाकर हम खुदा की उस बादशाही में दाखिल हो सकेंगे। जिस तरह वो कुंवारियाँ थी, 5-10 कुंवारियाँ थी, वो क्या थी? वो बादशाही की तैयारी कर रही थी। जो 5 अक्लमंद थी, वो अपने साथ सब कुछ तैयार लेके बैठी थी।
कुपियों में ईमान का तेल भरा हुआ था और उन्हें पता था कि ये सब कुछ जब तक नहीं होगा हम खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। और जो बेवकूफ़ थी उनकी कुपियों में से तेल ख़त्म हो गया, वो तेल लेने गए और बादशाह आ गया, खुदावंद यीशु आ गया, और जो जा चुकी थी वो चली गई और दरवाज़ा बंद हो गया। बाकी जो 5 आई वो दरवाज़ा खटखटा के कहने लगी हमारे लिए खोलो। खुदा कहता मैं तुझे नहीं जानता। इसी तरह हमने क्या करना है, खुदा की बादशाही में जाने के लिए पूरी अक्ल से, पूरी दनाई से, सब चीज़ों के साथ तैयार होना है ताकि हम उसकी हजूरी में जा सके, ताकि उसके हजूर जा सके, उसकी इस किंगडम में, इस बादशाही में दाखिल हो सके। इसके दाखिल होने की एंट्री यही है, ईमान में खड़े होना है और ईमान से सब कुछ करना है। जब हम खुदा से ईमान पर रखेंगे तो खुदावंद हमें सब कुछ देने में कादिर है। जो खुदा से होता है वो खुदा की बातों को सुनता है, और जो उसमें नहीं चलता, उसकी बातों को नहीं मानता, वो खुदा से नहीं है। इसीलिए हमें सिर्फ खुदा के ज़िंदा कलाम को सुनना और उस पर तवज्जो करना है, क्योंकि शैतान का काम ही है, वो हमारी सोचों से खेलता है, वो हमारा वक्त चुरा लेता है, वो हमारे बच्चों को हर चीज़ चुरा लेता है। क्योंकि अगर हम कामिल तौर पर ना चलें खुदा की हजूरी में, जब तक हम कामिल नहीं चलेंगे, जब तक हम उसके हुक्मों को नहीं मानेंगे, हमारे साथ ऐसा ही होता रहेगा। लेकिन जब खुदा की हजूरी आ जाती है, खुदा का फजल आ जाता है, खुदा हमारे में आ जाता है, तो फिर शैतान की कोई ताकत नहीं, क्योंकि उसने हमें एक इख्तियार दिया है। उसने कहा मैंने तुझे इख्तियार दिया है, सांपों और बिच्छुओं को कुचल लो और दुश्मन की सारी कुदरतें गालिब बाजो, तुझे कभी जर नहीं पहुंचेगा। ना तो हम कमज़ोर हो सकते हैं, ना हम मांदा हो सकते हैं, ना हम डर सकते हैं। बस इतना है कि वफादारी से, सब्र के साथ उसकी हजूरी में रहें, तो वो सब कुछ करेगा। वो हमारा बाप है, वो कादिर मुतलक खुदावंद खुदा है, जो अब्दियत का शहजादा है, जो था, जो है और जो आने वाला। वो कहता मैं मर गया था पर अब मैं ज़िंदा हूँ और अब्दुल्लाबाद हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। वो हमारे साथ रहना चाहता है। वो कहता है जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ तुम भी जाओ, और जहाँ मैं रहता हूँ तुम भी रहो। लेकिन उसके लिए हमें ये कलाम लेना है, ये कलाम की रोशनी लेनी है, ताकि हम सब छुड़ाए जाएं और बचाए जाएं। इस बादशाही का जाने का एक ही तरीका है, खुदा का ज़िंदा कलाम, जो हमारी राहों को हमवार करता है, जो हमें इसकी एंट्री देता है। हमें इस ईमान में और कामिल ईमान में खड़ा रहना है, ताकि हम फानी जो हमारे गुनाह हैं उनसे बचाए जाएं, जो हमें खुदा की बादशाही की जाने में रोकते हैं। खुदा की आवाज़ पस गुनाह तुम्हारे फ़ानी बदन में बादशाही ना करें, तुम उसकी ख्वाहिशों के ताबे रहो। हमें सिर्फ खुदा की ख्वाहिशों के ताबे रहना है, हमें सिर्फ खुदा के हुक्मों को मानना है, हमें खुदा की आवाज़ सुननी है, सिर्फ खुदा की। हमें दूसरी कोई आवाज़ नहीं सुननी। हमने सुबह उठकर ही अपने कानों को, अपने आप को, अपने पूरे जिस्म को, आबो हवाओं को, फ़िज़ाओं को, हर एक चीज़ को, हर रास्ते को जहाँ हम चलते हैं यीशु के लहू में कवर करना है, ताकि हम कहीं से भी दूसरी आवाज़ ना सुन सके। हमने सारे रास्ते बंद कर देने हैं, जहाँ कहीं भी सुराख है उसे यीशु के लहू में कवर कर देना है, ताकि हम कोई दूसरी आवाज़ सुन ना सके। हमें बंद करने हैं सारे रास्ते, सिर्फ एक रास्ता जो मेरे और आपने बाप ने हमें चल कर सिखाया। हमने सिर्फ उस बाप के रास्ते पे चलना है, ताकि हम सब हमेशा की ज़िंदगी पाएं, और हमेशा की ज़िंदगी सिर्फ हमारे खुदावंद के कदमों में है, उन राहों पे हैं जिस पर खुदा ने हमें चल कर दिखाया है। आए आज कोई बीमारी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जहाँ जहाँ आपको दर्द है हाथ रखे और खुदा से ईमान से मांगे, क्योंकि खुदा ने कहा देख बेटा मैं तुझे शिफा दूंगा। और जब उसने कहा है, उसकी हजूरी है, जहाँ वो आ जाता है वहाँ कोई बीमारी, कोई कमी, कोई कमज़ोरी नहीं रहती। किसी घर में भी आज कोई दुख ना हो, आज हम शादमान हो। हमारी जो नेगेटिविटी है हमें उसे निकाल कर अपने जिस्म से, अपनी सोचों से निकाल कर फेंक देना, और सिर्फ ये सोच रखनी है कि हाँ यीशु नासरी यहाँ मौजूद है, और जहाँ वो आ जाता है वहाँ कोई बीमारी, कोई वबा, कोई तकलीफ नहीं रहती। उसके आ जाने से ज़िंदगियाँ और हालात बदली हो जाते हैं। आज इस अहद से हम खड़े हैं, आज इस ईमान
ईमान पे खड़े हैं ताकि कोई ज़िंदगी में हमारी कमज़ोरी ना रह जाए, क्योंकि जहाँ यीशु है वहाँ कोई कमी और कोई कमज़ोरी नहीं है। खुदा आज इस कलाम के वसीले से हमें बरकत दे, ताकि हमारा रास्ता जो खुदा ने हमें बताया है वो सीधा आसमान की बादशाह तक पहुंच जाए, क्योंकि खुदा ने कहा आसमान, उसने अपना लहू सींच के हमें आसमानी रास्ता दिखाया है, और हमने इस बादशाही में जाने के लिए ऐसे काम करने हैं, तौबा करनी है, तौबा के माफिक फल लाना है और गुनाह फिर नहीं करना। ये करना है कि तौबा किया है तो तौबा ही पे रहे, ना कि बार बार गलतियां करें। कोई जानबूझ के बार बार ठोकरें नहीं खाता, एक दफ़ा लगती है, 2 दफ़ा, तीसरी दफ़ा संभल जाता है। इसी तरह आज हम इस ईमान में खड़े हो जाएं कि नहीं, अब मैं नहीं गिर सकती, क्योंकि मेरा खुदा मेरे साथ है। आप इरादा करो, बाकी काम खुदा पे छोड़ दो। आप ईमान में खड़े हो जाओ, बाकी सब खुदा करेगा। सिर्फ आपने ईमान में लेना है, ईमान में रह के कलाम को लेना है, ताकि खुदा के वादे हमारी ज़िंदगी में पूरे हों। खुदा हम सबको बरकत दे। खुदा आज सारियां कमियां कमज़ोरियां यीशु के नाम से दूर हो जाएं, ताकि हम सब ईमान में खड़े होकर आगे बढ़ते जाएं और हमेशा की ज़िंदगी पाएं, हमेशा की और अबदी ज़िंदगी जो हमारे खुदा ने हम सब के लिए रखी हुई है। खुदावंद, हमने ये सब कुछ मांगा और पाया है। आमीन, आमीन। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर हम सब के साथ साथ रहेगी, और हम हमेशा अपने खुदा के घर में सुकूनत करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल। हालेलुया, हालेलुया।